start with the topic of cash flow statement. Now we all know that in the last video we discussed about that cash flow statement meaning. Okay, cash flow statement meaning, as well as cash flow statement meaning, as well as what are cash and cash equivalents. Okay, what are the different types of activities and what is the meaning of those activities. Now in this particular video we'll be discussing about, we discussed about three activities: operating activities, investing activities, and financing activities. Okay, now in this video we're discussing about the operating activities, and I will tell you how you will calculate in a practical way. When the question comes, calculate the cash flow from operating activities, and what actually format you have to follow and how will you calculate. Okay, so in this video I will let you know the basics of how to calculate. In the next video I'll give you the questions in detail so that we will have better idea about the operating activities. Okay, from operations section of the company's cash flow statement. Now what does it mean? See, operating activities जब आप करते हैं, so what happens is, जब आपने cash flow statement बनाया तो आपको तीन activities से cash flow निकालना होता है. You have to calculate the net cash flow from operating activities, net cash flow from financing activities, and net cash flow from investing activities. Then you have to calculate the cash flow in the end, right? उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. सो इट इज द सेक्शन ऑफ द कंपनीज कैश फ्लो स्टेटमेंट. क्लियर, राइट? ये कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट का वो सेक्शन होता है जो रिप्रेजेंट करता है द अमाउंट ऑफ कैश ऑन कंपनी जनरेट्स from the operating activities. How much the company is generating the cash? What is the net cash the company has generated over a period of time from its operating activities, right? That means either cash, there will be cash inflow, some will be cash outflow. So what is the net cash generated out of those operating activities? Understood? So कितना भी, जैसे पहले आपको मैंने बताया, सी नेट कैश जो आपने नेट कैश ऑपरेट किया है वो कैसे आया? वो आपका ऐसे ही आया, राइट? सो इसमें सेकंड पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ठीक है, सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो सेक्शन होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का व्हिच टेल्स यू अबाउट द नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारी कौन कौन सी होती है? डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो आल्सो. दो हमारी कोर बिजनेस एक्टिविटीज हैं व्हिच आर द कोर बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ अ कंपनी which actually are generating the revenue for the business. They are the operating activities. Like for example, operating activity, suppose I just discussed about the bakery business, right? Suppose कोई bakery का business कर रहा है, उसमें what will be the operating activities? The core revenue generating activity, the principal activity of the business वो क्या है? Selling and buying of the bakery products, right? When you buy the bakery ingredients, right, that is your operating activity. When you sell them, it is an operating activity. What is now what are the expenses you incur in the business or day-to-day operations? That is your, what are the day-to-day expenses, like paying salaries, paying income tax, payment to the creditors, paying bills, manufacturing expenses which are used in the production of the goods, right? So these all will be your operating expenses. So much are operating activities. So what are the cash inflows in operating activities and what are the cash outflows in the operating activities? This is very, very important question. Now, methods to calculate operating activities. There are two methods to calculate operating activities. First method is either what you can do is either you can just subtract, right? You can just subtract. See, you can subtract cash inflow how you can calculate the cash from operating activities. You can subtract from the cash inflow minus cash outflows. That will give you all the net cash generated from the operating activities. ठीक है, cash inflow minus cash outflow.
राइट. सो आप कैश इनफ्लोज में से माइनस कर दो कैश आउटफ्लोज, ऑब्वियसली इट विल गिव यू ऑल द cash generated from the operating activities, right? But is it very easy? Because there are thousands of cash transactions, there are thousands of cash transactions which happen in a business. It will take a long list, right? So that is why we do not follow the direct method of calculating the cash flow from operating activities, because there are lists of thousands and thousands of transactions which happen on a cash basis. But they if we talk of the indirect method, we just have to adjust the non-cash expenses. We have to adjust the changes in the working capital. We have to adjust the as to adjust for the non-operating activities and thus get the final answer. I'll explain in the next slide. First, clear. It is a method of calculating the cash inflow simply by adding up all the money that consumers have paid to the company, that is cash inflows, over a given period of time and then subtracting all the expenses. Simple. आपने जितना कंपनी में कैश आया उसमें से माइनस कर दिया जितना कैश गया, तो ऑब्वियसली आपका क्या हो गया, जो भी नेट कैश generated out of the operating activities. But it is very difficult to calculate because it requires a lot of data, and also it's very exhausting job. So that is why हमारे पास indirect method होता है, उसमें we just take the net profit before tax and other extraordinary items and we adjust the non-cash expenses. Okay, and we adjust the changes in working capital, we adjust the non-operating activities, and then easily we calculate the operating activities generated, operating cash, net cash generated from the operating activities. Now this is a little difficult method than the direct method. Let us see how, but it is very easy once you understand the concept, right? अब हमारे पास next point क्या होता है समझने के लिए. सी मैंने थोड़ा सा पिछले वाले वीडियो में, आप जरूर वो पिछले वाला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को काफी डिटेल में बता रखा है कि उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में हमने बहुत डिटेल में कर रखा है, एग्जाम्पल भी समझा रखा है मैंने उसमें. इसमें हम प्रैक्टिकली फोकस कर रहे हैं उस क्वेश्चन पर जो हमारा किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा. तो प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस वीडियो प्रॉपर्ली. ओके, अब देख लीजिए वो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, टोटल कैश रिसीव माइनस कैश पेड फॉर द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. और इनडायरेक्ट मेथड में आपको एक्चुअली याद कर लेना चाहिए, बट स्टिल आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझना भी ज्यादा पड़ेगा. लॉजिक मैं आपको दे रही हूँ. इसमें आप टोटल नेट प्रॉफिट ले लो. देखो इसमें आपका प्रॉफिट निकलता है टोटल कैश रिसीव्ड माइनस कैश पेड फॉर द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वो तो डायरेक्ट लेंगे. लेकिन इसमें अगर टोटल नेट प्रॉफिट में से हम नॉन कैश एक्सपेंसेस माइनस मतलब माइनस जो हुए थे उनको एड बैक कर दें और माइनस कर दिए चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ये आपको मैं समझाऊंगी कैसे होता है. अभी आप तीन चीजों को इसमें याद रख लीजिए. पहली चीज होती है हमें इसमें नेट प्रॉफिट लेना होता है. हमें क्या लेना होता है, नेट प्रॉफिट. ठीक है. उसके बाद हमें लेने होते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस. ये वर्ड्स तीन चार अपने दिमाग में याद करिए, मैं आपको समझाती हूँ अभी. तीसरा हमको लेना है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. ठीक है. और चौथा हमको लेना होता है, fourth one is your non adjustment for non operating incomes and expenses. ठीक है. सो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड एक्सपेंसेस में आप कॉपी लीजिए और इसमें चारों चीजें लिखिए. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड पॉइंट, आप लिखिए इसके अंदर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल जो आपको एडजस्टमेंट करनी होगी. तीसरा आप लिखिए इसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस और चौथा लिखिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड एक्सपेंसेस. ठीक है. जो मतलब हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम्स नहीं है उनको एडजस्ट करना है. ठीक है. एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड एक्सपेंसेस. चार चीज लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. ये चारों चीज कॉपी पे भी जरूर लिख लीजिए. ठीक है. नाउ अब देखिए मैंने लास्ट में आपको समझाया था पिछली वाली वीडियो में भी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारी जो होती है प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, जो हमारा डे टू डे हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस में और डे टू डे हमारी जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से जो हमारे जो एक्टिविटीज होती हैं. करंट एसेट्स में आपकी क्या चीजें आ जाएगी, आपका सेल हुआ स्टॉक, आपने परचेज किया स्टॉक. ठीक है. आपने उसके बाद आपने बाय किए बेकरी आइटम्स, फॉर एग्जांपल इंग्रेडिएंट्स बाय करा आपने बेकरी के लिए, राइट. वो सब आपके पास सेलिंग में आ गया और सेलिंग आप परचेजिंग में आ गया. सेलिंग में आपका आ गया सेलिंग द बेकरी आइटम्स लाइक बिस्किट्स, ब्रेड्स जो आप बना रहे हो फैक्ट्री में अपनी, राइट. दीज ऑल आर द बेसिक कोर रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज व्हिच बेसिकली रिजल्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड प्रोड्यूसिंग एंड डिलीवरिंग गुड्स. ऑब्वियसली
जिस चीज का आपका बिजनेस है आपने वो गुड्स डिलीवर कर दिए तो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। इसमें आपका सेलिंग फर्नीचर नहीं आएगा, सेलिंग और बाइंग एसेट्स नहीं आएगा इसके अंदर, बिकॉज एसेट्स जो आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं। हम यहाँ जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं वो हमारी किससे डील करती है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। जो हमारी करंट एसेट्स होती हैं और करंट लायबिलिटीज। आपको पता है डिफरेंस इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अंडरस्टूड, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। Now, cash flow from operating activities includes all those activities, but does not include transactions which are related to financing activities and investing activities. मतलब अगर मैं नेट प्रॉफिट में से, अब इसको ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं नेट प्रॉफिट में से, मेरे पास टोटल नेट प्रॉफिट जो था, जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाला था, आपको रिमेंबर है जब आपने 11th एंड 12th में वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट बनाया होगा, तो आपको ये पता होगा कि उसके अंदर आप जब नेट प्रॉफिट निकालते हैं वो टोटल नेट प्रॉफिट होता है। ठीक है, उसमें आप डिफरेंशिएट नहीं करते कौन कौन सी एक्टिविटीज का नेट प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। आप टोटल एक्सपेंसेस, सारे के सारे एक्सपेंसेस, चाहे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, इन्वेस्टिंग एक्सपेंसेस हैं, फाइनेंसिंग एक्सपेंसेस हैं, या फाइनेंसिंग इनकम्स हैं, ऑपरेटिंग इनकम्स हैं, इन्वेस्टिंग इनकम है, जो भी है, आप सब चीजें अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है, तो उससे आपका नेट प्रॉफिट आता है। तो वो नेट प्रॉफिट हम लेंगे और उस नेट प्रॉफिट में से अगर हम माइनस कर दिए हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के एक्सपेंसेस और इनकम्स और हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के एक्सपेंसेस और इनकम्स, तो हमारा बचेगा क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। समझ आया, क्लियर हुई बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैंने आपको समझाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर नेट प्रॉफिट में से हम एडजस्ट कर लें, हमारे जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हटा दो, हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को एडजस्ट कर ले, इन फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को हम एडजस्ट कर ले, तो हमारा बचेगा क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तीन एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो अगर हम इन दोनों को, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को हमने एडजस्ट कर लिया नेट प्रॉफिट में से, तो हमारा क्या बचेगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बता रही हूँ। तो चार चीजें हमने जो क्या लिखी थी, लिखी अपनी कॉपी में। फर्स्ट ऑफ ऑल इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, जो आपको क्वेश्चन में मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक 3 एडजस्टमेंट्स। फर्स्ट, एडजस्ट फॉर नॉन कैश एक्सपेंसेस। ठीक है, बताऊंगी मैं अभी आपको डिटेल में। दूसरा, एडजस्ट फॉर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, वो हमारे क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से जो भी हमारे खर्चे इनकम्स हैं उसको एडजस्टमेंट करो। फिर तीसरा हमारा क्या था, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो ये चार चीज प्लीज अपने दिमाग में लिख लीजिए अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट समझना है अच्छे से। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अब देखिए, ये एक फॉर्मेट है कि पहले आपको कैश फ्लो निकालना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, फिर आपको कैश फ्लो निकालना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से, फिर आपको कैश फ्लो निकालना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से, फिर नेट कैश इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा वो आपको लिखना है, फिर ऐड करना है ओपनिंग कैश बैलेंस एंड देन यू हैव टू राइट डाउन द क्लोजिंग कैश बैलेंस। तो ये हमारा जो नेट इंक्रीज और डिक्रीज है वो हमारा है कितना चेंजेस हुए हमारे कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में पूरे साल। सपोज ओपनिंग बैलेंस हमारे पास पिछले साल का जो ओपनिंग बैलेंस था कैश का और कैश इक्विवेलेंट्स का वो था 10,000, और इस साल हमारे 4,000 रुपए कैश में इंक्रीज हो गया, तो क्लोजिंग कैश मेरा कितना होगा, 14,000। सिंपल सी बात है। सपोज मेरा ये ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको 14,000। ठीक है, अब 4,000 रुपए जो था 14,000, ठीक है, अब 4,000 रुपए जो मेरा था ये, इसमें नेट इंक्रीज मेरा 4,000 निकला है, 4,000 रुपीज, 4K। ठीक है, तो अब मुझे बताइए क्लोजिंग कैश कितना होगा, ये प्लस 4,000 है, तो क्लोजिंग कैश कितना होगा, टोटल को ऐड कर दो, 14,000 प्लस 4,000 टोटल 18,000, तो क्लोजिंग कैश मेरा कितना हो गया, 18,000। दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द आंसर। ये फॉर्मेट लिख लीजिए, दो चीजें लिख लीजिए, फॉर्मेट लिख लीजिए, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। ये हमारा है फॉर्मेट जो आपको याद करना है। अब देखिए, आपको याद तो करना होगा लेकिन मैं सारा लॉजिक आपको दूंगी कितना किस तरीके से याद करना है। ठीक है, इस फॉर्मेट को आप लिख लीजिए, नेक्स्ट टाइम इसी फॉर्मेट को ही हम डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो इतना आप चीजें दिमाग में पहले डाल लीजिए, चार चीजें मैंने आपको बताया, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मेट में कितना अच्छा से दे रखा है, आपको पहले ऐड करना है नॉन कैश एक्सपेंसेस, फिर माइनस करने हैं नॉन कैश इनकम, फिर उससे आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर हमें ऐड और करना है डिक्रीज इन करंट एसेट्स इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, फिर माइनस करना है इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, फिर हमारा आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, फिर उसमें से माइनस करना है इनकम टैक्स, फिर हमारा आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब आप बोलेंगे
ये तो बहुत डिफिकल्ट है, बट आई विल मेक इट वेरी वेरी इजी फॉर यू, वेरी वेरी इजी, कि आपको सब कुछ बिल्कुल इट विल बी सो इजी फॉर यू टू लर्न दिस फॉर्मेट एंड अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अब हम डिस्कस करेंगे, सिर्फ इसी से स्टार्ट करूंगी मैं। अब मैं पूरा डिटेल में और चीजें नहीं बताऊंगी, मैं इसी से स्टार्ट करूंगी बस डायरेक्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।